हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 51। श्रीमद् भगवत गीता आज इट इज चैप्टर 2 टेक्स्ट 51। कर्म जंग बुद्धि जुक्त्वा हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्म जंग बुद्धि जुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। शब्दानुवाद ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट। कर्मजम ड्यू टू फ्रूटिव एक्टिविटीज, सकाम कर्म के कारण बा सकाम कर्म जोगु। बुद्धि जुक्त्वा बीइंग एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति में लगे। बुद्धिजुक्त होई अर्थात भगवत सेवा कर्म रे नियुक्त होई। ही सर्टेनली निश्चिंत भावे निश्चय। फलम रिजल्ट बा फल, फल हिंदी में भी फल। त्यक्त्वा गिविंग त्याग करी, त्याग कर। मनीषिण बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण। ग्रेट सेजेस और डिवोटी, जो भक्त माने विशिष्ट मुनि बा ऋषि। जन्म बंध जन्म मृत्युर बंधन। फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से। विनिर्मुक्त मुक्त, लिबरेटेड मुक्त, मुक्त जीवगण। पदम पोजीशन व स्थान, पद पर। गच्छति पहुँचते हैं। दे रिच से माने प्राप्त होती। अनामयम विदाउट मेजरिस, दुख रहित बा बिना कष्ट के। ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण। बाय thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they became free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. अनुवाद रे कहा जाउछि, जो माने ज्ञानी से माने भगवत सेवारे नियुक्त होई भगवानंकर शरणापन्न हुअन्ति एवं से माने यही भौतिक जगत रे कर्मफल त्याग करी जन्म मृत्यु चक्ररु मुक्त हुअन्ति। यही प्रकारे सेमाने दुख एवं शोक रहित अनामय पद प्राप्त हो पारंती। हिंदी में कहा जाता है अनुवाद में, इस तरह भगवत भक्ति में लग रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। प्रॉपर्ड बाय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।
The liberated living entity belong to the place where there are no material miseries. The Srimad Bhagavatam 10 Canto 14th chapter text 58 says, Samasrita je padapallavang mahatpadang punya jaso murare bhavam buddhi vassa padang parang padang 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 jat vipadang natesam. Translation: For one who has aspect the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of mukti. The ocean of material world is like the water of content in a clap fruit print. Paramam Padam, or the place where are no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there is danger in every step of life. Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent person try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the result action will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miseries of life. Without miseries, the miseries of life, namely birth and death, old age and disease, are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the internal servitor of the Lord, and thus knows the position of the Supreme Personality of Godhead, engaged himself in the transcendental loving service of the Lord. Consequently, he became qualified to enter into the Vaikuntha planet, where there is neither material miserable life nor the influence of time and death. To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinking that the living entity position and the Lord position are on the same level is to be understood to be in darkness, and therefore unable to engage himself in devotional service of the Lord. He became a Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who understanding that his position is to serve, transfer himself to the serve of the Lord, at once became eligible to the Vaikuntha Loka. Service of the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or in plain word devotional service to the Lord. এই শ্লোকর ভাষ্য দিয়ে আমার পরমারাধ্য পরম পূজ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমদ ଅଭୟ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଆଉ ଶୋକ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଇଛି, ସମାଶ୍ରିତା ଯେ ପଦ ପଲ୍ଲବଂ ମହତ ପଦଂ ପୁଣ୍ୟ ଯଶୋ ମୁରାରେ ଭବାମ୍ ବୁଦ୍ଧି ବସ ପଦଂ ପରଂ ପଦଂ 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 ଯଦ୍ ବିପଦାଂ ନ ତେଷାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍
जो भगवान हेउचंती एही दृश्य जगतर आश्रयस्थल एवं जे मुकुंद नाम प्रसिद्ध अर्थात जे मुक्ति प्रदान करि पारंती सेही भगवानंकर पादपद्म रूपक नौका को जे आश्रय करिछि ता पक्षरे ए भवसागर एक गोस्पद पुष्कर बा गोबस्सा खुर खोदित एक पुष्कर सदृश अटे। परं पद हेउछि से भक्तर लक्ष्यस्थल। जो स्थान रे भौतिक जगतर दुख सुख नाही ताहा हेउछि परम पद अर्थात वैकुंठ लोक। एई वैकुंठ लोक हेउछि तांकर लक्ष्यस्थल। ए भौतिक जगत रे प्रति पदक्षेप विपद अछि। ए प्रकार भौतिक जगत तांकर लक्ष्यस्थल नुहे। यह श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 14 अध्याय श्लोक 58 रे कहा जाइछि। अविद्या बा अज्ञानता जोगु व्यक्ति जानी पारु नाही जे ए भौतिक जगत विपदपूर्ण बा दुखपूर्ण अटे। एठारे प्रति पदक्षेप विपद भरी रही। अज्ञानता जोगु अल्प बुद्धि संपन्न लोक भावती जे सेमानकर कर्मफल सेमानक आनंद देव बा सुख देव। तेणु सेमाने सकाम कर्म रत होई अवस्था को सही नेबा पाई चेष्टा करती। सेमाने एक कथा जानी पारंती नाही जे ए ब्रह्मांड रे कौनसी जीव सुख पाउ नाही। ए भौतिक शरीर जीव को कदापि सुख देउ नाही बरं दुख प्रदान करुछि। ए भौतिक जगत रे सर्वत्र जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक दुख भरपूर हो रही। किंतु जे तार स्वरूप स्थिति को जानी पारिछ अर्थात जे जानी पारिछ जे से होची भगवानकर नित्य दास एवं सही अनुक्रमे भगवानकर स्थिति को मध्य से जानी पारिछ से निजको भगवानकर दिव्य सेवारे नियुक्त करे। परिणामतः से वैकुंठ लोकरे प्रवेश करने को योग्य बोली विवेचित हुए। वैकुंठ लोकरे जड़ जगतर दुख नहीं कि कालर प्रभाव रे मध्य मृत्यु नहीं। निजर स्वरूप स्थिति को जानिबार अर्थ भगवानंकर दिव्य स्थिति को मध्य जानिबा। जे भ्रमवशत जीव एवं भगवान को एका स्तर बोली भावे बुझिबा को हेबो से अंधकार रे अछि एवं सेथिपाई से भगवान सेवारे आत्मनियोग करि पारे नाही। से निजे भगवान साजे। तेणु से बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे घुरिबा को आगे आसे। किंतु जे कथा जानिछि जे से भगवानकर सेवक बा से सेवक स्थिति रे अछि एवं तद अनुजाई भगवानक सेवारे आत्मनियोग करिछि से वैकुंठ लोकरे प्रवेश करिबा निमित्त योग्य हो जाए। भगवानक पाई कर्म करिबा बा भगवत सेवा करिबा को कर्मयोग बा बुद्धियोग कहा जाए। यह को आमे सीधासलख भावरे मध्य भक्ति योग बोली कहू। जय शिल प्रभुपाद जी महाराज की जय। शिल प्रभुपाद जी महाराज जदाते मोह कलिलम कर्मजंग बुद्धिजुक्त्वा हि फलं तिक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्त्वा पदं गच्छन्त्यनामयम्। यह श्लोक पे भाष्य देकर कहते हैं मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है समासित पदपल्लवप्लवं सह पदं पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि वर्स्त पदं 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 जद विपदं न तेषाम्। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाभों को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुरा में समाये जल के समान होते हैं। उसका लक्ष्य पर परम पद है अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं या कि वैकुंठ है। वो स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो।
अज्ञानवश मनुष्य नहीं समझ पाता है कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पथ पथ पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्प ज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्म से सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इसी प्रकार भगवान के स्थिति को समझ लेता है, और वही भगवान की प्रेमी भक्त में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझ कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सबके है और अपने का भगवान की सेवा में लगा देता है, वो तुरंत वैकुंठ लोक जानने के अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि जो कहलाते हैं, जिससे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्णा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गोपाल जी। हरे कृष्णा।